Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this session, we'll discuss the problem one and grades. The problem two is a similar problem in which the value of the resistance is changed. And in addition to the questions, in addition to the repetition of part A for different resistances, it asks another question: is the level of VD relatively close to 0.7 volts in each case? So this question is because it is following the same pattern as the question one. So I would like you to do it by yourself. So now we are moving towards the next question. Okay, in problem number 3, determine the value of R in circuit 2.153 that will result in a diode current of 10 milliamperes if E is equal to 7 volts. Use the characteristics curve of figure 2.15 to be for the diode. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिगर 2.153 जो है ये कौन सी ओके दिस द फिगर 2.153 so determine the value of R. So we have to find the value of the R in figure 2.153 that will result in a diode current of 10 milliamperes if the battery voltage is set to 7 volts. And we are to use the same characteristics which are given in 2.152D. So these are the characteristics. That we have to use. So we just copy the characteristics from here. And paste them here. And similarly, we just copy the circuit. And paste the circuit over here. So the question is that we are to find the value of R. जिसमें के डायोड करंट 10 milliamperes हो और E की वैल्यू जो है वो 7 volts. So we are to find the value of R if the diode current at E is equal to 7 volts. Equal to 7 volts. So this is given. So because we know the value of E, similarly we know the value of ID. So we can mark on the graph that E is 7 volts. So we mark our first point, and current through diode is 10 milliamperes. So that means the value on the ID axis is 10 milliamperes.
So on ID axis, we go to the ID and mark the 10 milliamperes. Okay, so we now have both points with us. We can just join these 2 points, and we can perform the load line analysis. But here the question is that find the value of R if the current through the diode is given and the battery voltage is given. Now the battery voltage is, although it is given in the circuit 6 volts. Okay students, welcome back. Assalamu alaikum. आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम सर। जी सर, आ रही आवाज। हाँ, अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में ये एक सर्किट दिया हुआ है और सर्किट के अंदर से अगर मैं वो चीजें जो इसने यहाँ पे अलग से दी है उनकी बात करूं तो इसमें ये सर्किट इस तरीके से दिया है कि ये सर्किट है, इसमें ई की वैल्यू जो है वो 7 है और मैं यहाँ लिख दूँ ये 7 है और करंट थ्रू डायोड दे दी है 10 मिली एम्पेयर्स। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10 मिली एम्पेयर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज आ रही है? ओके, देन वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हमें मालूम है ई वैल्यू मालूम है 10 मिली एम्पेयर्स हमें मालूम है और हमने मालूम करना है और उसके मेरे पास थोड़ा नेट स्लो है, रुक रुक के आवाज आ रही है सर। ओके रुक रुक के कट कट कर सर, मेरे पास नेट स्लो है, थोड़ा कट कट कर आवाज आ रही है, ओके इसलिए मैं सर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं। आप के लिए ये है कि जैसे ये रिकॉर्डिंग हम अपलोड कर देंगे तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्योंकि ऐसा, ठीक है सर। लेकिन वो हम इसको खुद सही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हेलो ओके, मैं उनको मैसेज दे दिया कि अगर आपका नेट स्लो है तो यू कैन वॉच लेटर एज ए रिकॉर्डेड वीडियो क्योंकि ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। वाकई उनकी बात सही है कि ये प्रॉब्लम जो है ये फेस हो सकती है। ओके, नो द करंट थ्रू द डायोड इज 10 मिली एम्पेयर्स एंड द रेजिस्टेंस वैल्यू इज अननोन। हम इसको हमें फाइंड करना है। सो दिस वैल्यू इज अननोन। इसको हम कैसे करेंगे ना, क्योंकि we have marked these points on the x-axis, यानी voltage axis. This is voltage axis, and similarly on the current axis we have marked the point. ये पॉइंट जो है ये हमने मार्क कर लिए हैं और अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम जो है वो किस तरीके से करेंगे क्योंकि जो क्यू पॉइंट है उसमें जो आईडी की वैल्यू है ये हमें दे दी गई। तो बेटा कोई आपके ज़हन में आइडिया है कि कैसे करेंगे? पहले आपसे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर इस सवाल को करते हैं। जी बेटा, आप बता सकेंगे कि इफ देयर इज एनी, आपके ज़हन में कोई चीज़ आ रही हो कि कैसे करेंगे इसे? जी मुबश्शिर, आप बताइए। ओके मुबश्शिर, आपको मेरी आवाज आ रही है?
कोई आइडिया दे दीजिए। फैसल आप कोई आइडिया दे दें कि कैसे सॉल्व करेंगे। सर इसकी पहले सर क्यू पॉइंट निकालेंगे सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे मुबश्शिर, आप भी बेटा याद रखें, पहले क्यू पॉइंट निकालें। ठीक है, क्यू पॉइंट निकालने के लिए पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है ये हमें प्राइमरी बताएगी कि उसका क्यू पॉइंट कब, ये जहां कट करेगी कर्व को वो इसका क्यू पॉइंट होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे अंदाज में बताया कि पहले क्यू पॉइंट मालूम करेंगे। क्यू पॉइंट से हमें वोल्टेज भी मिल जाएगी और वोल्टेज अक्रॉस डायोड, और क्यू पॉइंट से हमें मिल जाएगा क्या कहते हैं, करंट तो ऑलरेडी है हमारे पास। जी मुबश्शिर, अब आप बताइए अब आगे क्या हो। जी बेटा बताइए। मुबश्शिर आपको आवाज आ रही है, कंफर्म कर सकते हैं। लगता है मुबश्शिर को आवाज नहीं आ रही या कंफर्म नहीं कर पा रहे। ओके, एनी हो, अब चूंकि क्यू पॉइंट आ गया है तो अब हम इसका वोल्टेज मालूम कर सकते हैं कि डायोड के अक्रॉस क्या है। अगर हम यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये 0.8 वोल्ट पे जाके कांटेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.8 वोल्ट जो है ये डायोड के अक्रॉस जो है ये ड्रॉप हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 0.8 वोल्ट लिख दूं, ये सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस 0.8 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और टोटल वोल्टेज 7 है। तो जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है उसमें 0.8 वोल्ट कम कर देंगे। तो 7 में से 0.8 वोल्ट कम करें तो हम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ई माइनस वोल्टेज अक्रॉस डायोड। ई 7 वोल्ट है और डायोड के अक्रॉस हमने अभी वोल्टेज मालूम की है 0.8 वोल्ट से। तो ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 6.2 वोल्ट्स। अब चूंकि वोल्टेज हमें पता चल गई है कि जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, करंट हमें पता है, तो अब हम मालूम कर सकते हैं आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू जो होगी वो होगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ये वैल्यूज जब हम रखेंगे, ये ओहम्स लॉ है, डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर्स, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.62। 0.62 किलो ओहम्स, क्योंकि 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 6.2 बन जाएगा और मिली एम्पियर्स है नीचे, ये ऊपर जाके किलो ओहम्स बन जाएगा। इस तरीके से हम आर की वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे। जी बेटा ये चीज समझ में आई है। जी सर। थैंक यू वेरी मच। और चूंकि ये रिकॉर्डिंग आपके पास है, आप जैसे ही आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप इसको अच्छे अंदाज में कर लेंगे। ओके बेटा, इस तरीके से अच्छे हमने एक छोटी सी कोशिश करके दो प्रॉब्लम्स जो है वो अभी तक कंप्लीट कर ली है। और दो प्रॉब्लम कौन कौन सी है, एक प्रॉब्लम 1 है, ये हमने कंप्लीट कर ली है। इसी तरीके से प्रॉब्लम 2 चूंकि प्रॉब्लम 1 के साथ मिलती है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें क्या कहते हैं कोई नई चीज नहीं है। लिहाजा ये प्रॉब्लम 2 जो है ये आप आसानी से कर सकते हैं। ये हम आपको दे देते हैं करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 अभी कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ जाएंगे।
ओके, क्वेश्चन 4। ओके, यहाँ स्टूडेंट्स का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। Okay, question problem 4 है, using the approximate characteristics for the silicon diode, determine the voltage, current and the voltage across resistance for the circuit of figure 2.154. ये 2.154 है। B part है, perform the same analysis using the ideal model. Ideal model हमें पता है 0 volts. Do the result obtained in parts A and B suggest that the ideal model can provide a good approximation for the actual response under some condition? क्या A और D को के आंसर देखने से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आइडियल मॉडल को हम यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट मॉडल के अलावा, यानी अप्रोक्सीमेट मॉडल के बजाय हम आइडियल को यूज कर लें। अब हम क्वेश्चन 4 को करते हैं। ओके, इसके लिए हमें ये सर्किट चाहिए और हम अप्रोक्सीमेट कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे। तो हम इस सर्किट को कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास सर्किट है और हमने अप्रोक्सीमेट मॉडल यूज करना है। ओके, अप्रोक्सीमेट मॉडल का हमें पता है कि जो अप्रोक्सीमेट मॉडल होता है उसमें जो वोल्टेज होती है वो सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट्स होती है। यहाँ पे मुझे 0.7 वोल्ट होती है। तो हम लिख सकते हैं पार्ट ए को करने के लिए, we know that the voltage across diode is 0.7 volts for simplified model. तो अब हम मालूम कर सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि 0.7 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया है और बाकी का जो वोल्टेज होगा बैटरी का वो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ के थ्रू कि सम ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू 0, तो तमाम वोल्टेज का सम लेंगे तो 0 है। तो 30 वोल्ट्स जो है वो ड्रॉप हो रहा है 0.7 वोल्ट सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस और रिमेनिंग जो है वो ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फार्मूला E माइनस वोल्टेज अक्रॉस डायोड। जब इसमें वैल्यूज रखेंगे E की जगह 30 वोल्ट्स लिखेंगे और वोल्टेज अक्रॉस डायोड 0.7 वोल्ट लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा और वो आंसर ये होगा कि 29.3 वोल्ट्स। इतना वोल्टेज जो है ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। अब चूंकि हमें वोल्टेज मालूम हो चुका है, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो हम यहाँ से करंट मालूम कर सकते हैं। तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। जब हम ये वैल्यूज लगाएंगे फॉर्मूलाज में 1.5 के और कैलकुलेटर हमें चाहिए होगा। और कैलकुलेटर से हम मालूम करेंगे 29.3 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी 19.53। दो डेसिमल प्लेसेस तक ले रहे।
So 19.53 मिलियम्पेयर्स, ये हमारे पास जो है करंट थ्रू रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया, और वोल्टेज अक्रॉस डायोड भी मालूम हो गया। यानी हमें तीनों क्वांटिटीज मालूम हो गई, करंट थ्रू डायोड, और इसी तरीके से क्योंकि करंट थ्रू डायोड जो है वो यही है जो अभी हमने देखा, ये जो आईडी है ये आई आर ही है। तो 19.53 मिली एम्पेयर्स यही आंसर होगा इसका। करंट भी मालूम हो गया और हमें वोल्टेज भी मालूम हो गया, वोल्टेज अक्रॉस डायोड 0.7 वोल्ट्स फॉर सिंपलीफाइड मॉडल, और इसी तरीके से हमें जो है वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी मालूम हो गया। तो बेटा ये सवाल समझ में आया है, इसमें हमने वो कर्व यूज नहीं किया। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट कहता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड जो है वो 0 वोल्ट्स है और आइडियल मॉडल। अब जब हम मालूम करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो उसी फार्मूला से E माइनस वी डी, जब हम वैल्यू रखेंगे तो सारे का सारा वोल्टेज जो है वो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। इससे हम करंट मालूम कर लेंगे।
Okay, students. Okay, students. Now the third point, the third part. Third part is compare the ID values for A and B. Okay, if we see the ID values for part A, the ID value is 19.3, and for part B, the value is 20 milliamperes. So there is only difference of 0.5 milliamperes. So they are very close. Okay, so we can write both values are very close, and we can use ideal model in place of simplified model. For a given circuit, ये जो सर्किट गिवन है इसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिन केसेस में डिफरेंस ज्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 18 मिली एम्पेयर्स हो, यहाँ 20 हो, तो 2 मिली एम्पेयर्स का डिफरेंस है, तो इस सूरत में हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन कम डिफरेंस होने की सूरत में हम इसे यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया है ये? जी सर, समझ आ गया। अशर, आप कहाँ गायब थे? हम आपको आवाजें देते रहे, आपने आंसर ही नहीं दिया। सर आपकी आवाज अभी कट हो रही थी सर, अब आना शुरू हुई है अजान से पहले। अच्छा बेटा, आज का सब्जेक्ट जो है वो हम यहीं तक रखेंगे, और आपको एक क्विज और एक असाइनमेंट जो है वो कोशिश करूंगा कि आज या एक दिन में या कल हम इंशाल्लाह आपको इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो एक दे दें। ठीक है, तो आपने ये जरूर वीडियो जरूर एक दफा देख लें। ठीक है, ओके। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं। नो सर, ये थैंक यू। आपने क्या बताया? क्विज और असाइनमेंट। जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं उसमें से हम आपको क्विज और असाइनमेंट बना देंगे। ठीक है, ओके। ये मैंने आपके लिए टाइप भी कर दिया है। आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, और फिर हम इस बाद वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जिनका जो है वो सीरीज डायोड कन्फिगरेशन से है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि हम सीरीज डायोड कन्फिगरेशन और पैरेलल एंड सीरीज डायोड कन्फिगरेशन जो है इसके क्वेश्चन जो है वो कल कंप्लीट कर लें। जो है ये हमारे पास एक अच्छा जो प्रॉब्लम्स का जो जखीरा है, यानी तकरीबन 10 से 12 या 13 तक प्रॉब्लम्स जो है ये हम कंप्लीट करें। ठीक है, बाद आगे फिर हमें एक दिन और चाहिए होगा जिसमें ताकि हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स की प्रॉब्लम जो है ये कंप्लीट कर लें। फिर उसके बाद हम क्लिपर क्लैम्पर, वोल्टेज मल्टीप्लायर और जीनर डायोड जो है उन टॉपिक्स को देखेंगे। जिस तरह डायोड के टॉपिक्स जो है ये हमारे इस वीक में कोशिश करेंगे तो इस वीक में हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, कल आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सर जी बेटा, कोई सवाल है पूछे। सर बस इसका ही पूछना था, प्रॉब्लम का जैसे आपने बताया ये सर, यानी कर ले हम कोई उधर असाइनमेंट की जो है प्रॉब्लम 4 और 1। ये मैं आपको भेजूंगा, डॉक्यूमेंट भेजूंगा। अच्छा अच्छा, सही सर, सही। ओके, अल्लाह हाफिज।
अच्छा ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।